کو سب کو یہاں جمع فرمائے۔ جمعہ کی نماز یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک بہت معزز فریضہ ہے، اور اس امت کو یہ انعام کے طور پر دیا گیا ہے، اور اس میں جہاں بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہاں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ جمعہ کی نماز تمام محلے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر ادا کریں، اور وقت کا جو تقاضا ہے، وقت کا امام ان کو چیزوں پر آگاہ کرے۔ جہاں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز میرے اور آپ کے لیے اور اہم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے فتنہ و فساد، آپس میں اپنے بیچ کی دوریاں وہ ختم کر کے متحد ہو کر یک جٹ ہو کر زندگی گزاریں، ورنہ میں اور آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے کہ اس وقت دنیا کا کافر، دنیا کا کفر اسلام کے مخالف کھڑا ہو چکا ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب میں اور آپ لگاتار آواز دیتے رہیں، چلاتے رہیں، چیختے رہیں کہ ہمارا قرآن مٹایا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جب دوسرے مذہبوں کی تمام کتابوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہندوستان میں جن کو رائز کرنے کا اور فروغ دینے کا، چلانے کا، جن کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان بھی کرایا گیا ہے، وہاں میرا اور آپ کا قرآن، اس کی چرچا بھی نہ کی جائے، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اگر میرے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہم مسلمان ترقی کریں، ہمارا اسلام زندہ رہے، تو کہنے سے نہیں، اعمال پر مجھے اور آپ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہمارے اعمال ہیں، 5 نمازوں کی پابندیاں ہم کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے بچیں، اسی طریقے سے آپس کی بدکلامیاں اور آپس کی فحش اور کھلی گندی گالیاں آپس میں ہم دینا بند کریں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم سچائی ہے اور حقانیت پر ہے۔ اگر میں اور آپ اور میرا اور آپ کا دوسرا بھائی مسلمان، تمام دنیا کا مسلمان اگر ایک جا ہو کر کسی کافر قوم کو نشانہ بنائے، ظلم کرے، تو یاد رکھنا، ظلم کے ساتھ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ نہ ہی اگر میں اور آپ مل کر کافروں پر تنگی کریں، ظلم کریں، تو یاد رکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ کی جو مدد اور نصرت ہوگی وہ کافروں کے ساتھ ہوگی۔ ظلم کے ساتھ اسلام کی، مسلمانوں کی یا اللہ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ظلم کو مٹانے کی تو اسلام تعلیم دیتا ہے۔ میں اور آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب نے تعلیم دی ہو کسی غیر مذہب کے ماننے والے سے بھی احترام کرنے کی، جس مذہب نے تعلیم دی ہو گندگی سے دور رہنے کی، اور اپنے سے الگ، مسلمانوں سے الگ، غیر مذہبوں کے ماننے والوں کی بھی بہن بیٹیوں کو ایک اسلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی اپنی بہن بیٹیاں ہیں۔ اس مذہب کی پاکیزگی دیکھیں، اور پھر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، میرا اور آپ کا کنٹرول اور ان کے اوپر چلن اور ان پر باقاعدہ ایک مشن میں اور آپ کہاں تک لے کر گئے ہیں۔ صرف نام و نہاد کے مسلمان ہیں میں اور آپ۔ اگر ہوتا، اگر میرے اور آپ کے ایمان پر، میرے اور آپ کے اعمال میں قوت اور طاقت باقی رہتی،
से अपनी जरूरत का सामान खरीदना भी पसंद नहीं करते। क्यों? मेरे और आपके जहन में बात बैठ चुकी है कि एक मुसलमान महंगा काटता है। हम तरजीह दे रहे हैं अपने ऊपर खुद एक गैर मजहब के मानने वाले को। क्यों? हमने अपने किरदार से, अपने अमल से इस्लाम को इतना खोखला बना दिया, गोया के इस्लाम की कोई हैसियत ही लोगों के दिलों में बाती ना रही। और एक वक्त था कि लोग दूसरे मजहबों के मानने वाले भी मुसलमानों को फौकियत देते और इनको इज्जत की नजर से देखते थे। आज मैंने और आपने अपने अखलाक और किरदार से गोया मजहब इस्लाम को इतने पीछे ढकेल दिया है कि इसकी कोई हैसियत ही बाकी न छोड़ी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं और आप अगर चाहते हैं कि इस्लाम तरक्की करे, मुसलमान ऊपर आए, तो जरूरी है मेरा और आपका अमल पर खड़ा होना। जैसे नमाज जुमा में और आप अदा करने आ गए, बिल्कुल इसी दर्जे की हैं 5 वक्त की नमाजें, लेकिन मेरे और आपकी गफलत देखिए, कितना दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। 5 वक्त की नमाजें जैसा फर्ज, जैसा दर्जा रखती हैं, वही दर्जा है जुम्मे की नमाज का। लेकिन चलो नाने से बेहतर यह था कि आप जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आ गए, लेकिन कोशिश ये हो कि जिंदगी में कभी नमाज जैसी चीज जाए ना। कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है कि मैं और आप दुनिया में जुल्म सहते रहे मुसलमान होने के नाम पर। दूसरी कौमें हम पर कीचड़ उछालते रहे कि हम मुसलमान हैं, और फिर तो कयामत के दिन होश आए कि हम मुसलमान ही नहीं थे। कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे पास खालिस वो है कि जो इस्लाम की हो, जिससे मैं अपने आप को ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। एक चीज मेरी जिंदगी में नहीं है, कोई एक चीज। तमाम तरीके और सलीके गैरों के जो जिंदगी गुजारने के, वो मैं भी अपना रहा हूं। फर्क क्या है? फर्क एक बुनियादी चीज सिर्फ नमाज हो सकती है, इसके अलावा कोई चीज हमारे पास ऐसी नहीं है जिसे लेकर हमें दावा करना है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ये चीज है। सिर्फ वाहिद चीज नमाज है। नमाज, अगर नमाज से भी कोताही बरतते हो तो मैं और दूसरा मजहब का मानने वाला तो एक सफ में खड़े हैं। हमारा अंदर कोई फर्क नहीं है, फर्क करने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है मेरी जात के अंदर। कम अज कम ये तो हो, अल्लाह ने जब अपना इतना बड़ा फजल किया, इतना बड़ा करम किया कि बगैर किसी दरखास्त के, बगैर किसी मंजूरी के, अपने इख्तियार से अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम की दौलत दी, तो अब होना यह चाहिए था कि हम मरे भी तो इस्लाम पर ही हमें मौत है। ये होना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को तलकीन की थी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेटो, ये बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके तमाम भाई आखिरी वक्त में आकर हुजूर के सरहाने खड़े हो गए। पापा, आखिरी वक्त में कोई नसीहत जो की कुरान ने उसे बयान किया है। कुरान ने कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने बेटों से यूं कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेटो, सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा अहम और पल्ले बैठ बांधने वाली बात यह है कि तुम मरो, तुम्हें आखिरी वक्त आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ये सबसे अहम चीज है। जिस नसीहत को आखिरी वक्त में एक नबी अपनी औलाद कर बजाए, भला उससे कीमती नसीहत और क्या हो सकती है। इसलिए मेरे और आपके लिए भी नसीहत का दर्जा रखते हो। नसीहत है कि खुदा हम अपने अमाल को ऐसा बनाए कि अगर अचानक कई हादसे वाले मौत में भी हमें मरना पड़ा तो हम मुसलमान होने की हालत में अल्लाह के दरबार में हाजिर। मैं और आप जिस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं है कि मैं मुसलमान होकर भी मरूंगा। ऐसी पोजीशन में और ऐसी हालत में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं।
भला हम जो धोखा दे सकते हैं सामने वाले को, लेकिन अल्लाह की जात को कभी धोखा नहीं दे सकते। वमकर अल्लाह, हम समझते हैं कि हम लोगों के साथ और अल्लाह के साथ धोखाधड़ी करें। कोई गुनाह अगर लोगों की नजरों से छुप कर मैंने कर लिया तो मैं समझता हूं तो कितना होशियार आदमी है यार, किसी को भनक भी ना उस तरह काम बन गया। एक लम्हे के लिए भी मेरी सोच में न आया, कोई न देख रहा हो तब भी वो जात देख रही है, और एक नहीं हजारों तरीके से मेरी जात पर उनकी निगाह है। ये चीज मैं भुला देता हूँ सेकंड में, जिस सेकंड में कोई अल्लाह की नाफरमानी के लिए कदम उठाता, अल्लाह उसी को करो मकरू। ये लोग समझते हैं धोखा दे रहे हैं, हम लोगों से छुप रहे हैं। मकर अल्लाह, अल्लाह भी तो बदर कर रहा है, अल्लाह भी नजर में है आपकी, अल्लाह भी आप पर नजर रखे हुए हैं। अल्लाह धोखा नहीं खाता, अल्लाह की जात धोखा नहीं खाती। मेरे भाइयों, मैं और आप गफलत में हैं, इस गफलत से दूर होइए। कम अज कम ईमानी अमाल पर मुकम्मल खड़े होने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, ईमान के कमजोर होने की बुनियाद पर। तो इतना तो हो कि सबसे ज्यादा अहम और बड़ा अमल जो ईमान का और इस्लाम का है वो मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ दर्जे में तो बाकी रहे, वो है नमाज। लिकुल्लि शैइन आलम, हर चीज की कोई न कोई निशानी, कोई न कोई अलामत और पहचान होती है। वो आलमुल ईमान व सलाह, ईमान की अलामत और निशानी, एक मोमिन की पहचान और नमाज है। नमाज के बगैर कोई चीज मेरी जिंदगी में ऐसी नहीं है जो मेरे मुसलमान होने पर लोग उसकी सच्चाई को जानने के हाँ वाक़अतन ये चीज इसकी जिंदगी में है तो ये मुसलमान है। ऐसी चीज हदीस के हवाले से मैं आपको बतला रहा हूँ। सिर्फ वाहिद चीज एक इंसान की जिंदगी में नमाज ऐसी है जो उसके मुसलमानों की सब में खड़ा कर सकती है। अल्लाह मुझे और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा, 5 वक्त नमाज व जमात अदा करने की तौफीक बरामद फरमा।